student of class 9th. Today we will discuss about English chapter first, the lost child. Actually we are doing अपन सभी ये चाह रहे हैं कि हमें एक बुक है आपके इसमें बिहाइव, जिससे आप पढ़ते हैं इंग्लिश में, और आपकी एक और बुक है जो उसके साथ में रहती है जिसका नाम है मोमेंट। तो हमें दोनों चैप्टर, अभी फ़िलहाल मैंने आपको इसके पहले उसी बुक बिहाइव बुक में से फर्स्ट चैप्टर करवाया था। अब सेकंड हम मोमेंट की बुक में से पढ़ेंगे, द लॉस्ट चाइल्ड। तो हम साइमल्टेनियसली दोनों बुक में से एक एक चैप्टर करते रहेंगे। A lost child to a fair with his friend. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them. ये चैप्टर जो है हमारा, ये एक लड़के के बारे में है जो मेले में घूमने जाता है, और आपको चैप्टर के नाम से समझ में आ गया होगा कि वो बच्चा घूम जाता है। तो चैप्टर अच्छा है, एक मैसेज है इस चैप्टर का बहुत अच्छा सा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lamps and alley emerged to gaily glad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock cart. One little boy ran away, his father legs brimming over with life and laughter. ये देखिए चैप्टर में ये इसके मम्मी पापा है और इनका एक बच्चा है जो मेले में घूमने जा रहे हैं। Come child come, called his parents, and his lag behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. He hurried towards his parents, his feet too obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys as he come to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well know the old cold stare of देखो, जो लड़का है वो उसके मम्मी के पापा के साथ में मेले में गया हुआ है, और वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वहाँ पर जाने के लिए। तो आगे देखते हैं। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई in the similar tyrant way. His mother, melted by the free spirit of days, was tender and giving her finger to hold, said, "Look, child, what is the before you?" It was a flowering mustard-filled plain like melting gold had swept across miles and miles of land. देखिए, जो बच्चा है वो मेले में जाने के बाद में कुछ खाने पीने की या कुछ झूले में झूलने की जिद करता है। तो सबसे पहले तो वो जाता है हमारे पहले वो टॉय की जिद करता है कि मुझे खिलौने दिलाओ। तो उसके जो पापा है वो उसे गुस्से में आँख दिखा देते हैं। जैसे हम मेले में जाते हैं, हमारे साथ होता है ना कि पेरेंट्स हमें बोल देते हैं कि नहीं चाहिए, डायरेक्टली नहीं बोलते पर आंखें दिखा देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो हमें नहीं दिलाएंगे। नेक्स्ट है, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बर्स्टलिंग अबाउट ऑन देयर गिडी पर्पल विंग्स इंटरप्टिंग द फ्लाइट। तो जो उसकी मदर होती है वो मदर उन्हें उसका माइंड डाइवर्ट करती है कि देखो बेटा यहाँ पर कितना अच्छा खेत है, यहाँ पर क्या है, ताकि वो उस टॉय को भूल के और आगे बढ़ने लग जाए। यही सब चीज़ें इसमें दी बताई गई है। कैसा फुटपाथ है, कैसी वहाँ पर चीज़ें हैं, कैसा आपको सुंदर सा है, मतलब उसका कुल मिला के माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon be left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath. There were teeming hiding places to enjoy the sunshine. Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of wall. He ran towards them. A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in the hands, but lowered the cooing of doves and ran towards the parents, shouting, "Come, child, come." They called to the child who had gone running in wild capers around to banyan tree, and gathering him, they looked in the front footpath led to where the mustard. As they neared a village to child, अब देखिए क्या होता है कि पहले तो आपको वो जो है हमारा ये जो इनका बच्चा है वो सबसे पहले तो टॉय की जिद करता है, फिर उसके आगे जाता है तो उसे स्वीट्स की शॉप दिखाई देती है, तो वो शॉप के लिए जिद करता है कि मुझे स्वीट्स खानी है। तो वो भी पता होता है कि उसको पेरेंट्स तो दिलाएंगे नहीं,
तो वो बोलता है कि मम्मी मुझे बर्फ़ी खानी है, बर्फ़ी खानी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और स्वीट हार्ट सेलर हॉक, गुलाब जामुन रसगुल्ला। तो जो जैसे आवाज़ लगाते हैं ना दुकान वाले कि जो गुलाब जामुन रसगुल्ले ऐसे करके, तो जो एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस क्राउड प्रेशर अराउंड हिज अनकाउंटर फूड एंड आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड। बहुत सारी वहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की क्या लगी हुई है, लीव्स लगी हुई है और बहुत सारे बर्फ़ी रखी हुई। तो वो जो उनका बच्चा होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, वो बोलता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। स्लो मरमर्ड मतलब जैसे जीत करता है ना, वो रिक्वेस्ट टाइप वैसा। बट ही हाफ न्यू एज ए बिगड एंड प्ली वुड नॉट बी हेडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। और वो उसे कहते हैं कि तुम बहुत लालची हो और कोई ज़रूरत नहीं है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूड, उसके बिना आंसर के लिए बोले उससे वहाँ से वो निकल जाते हैं। अ फ्लावर सेलर ऑक्ड गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। वो जो फ्लावर वाला है वो ईसा बोलता है उसकी दुकान के लिए कि फूल ले लो, फ्लावर ले लो। द चाइल्ड सीम इरेसिस्टिबली ड्रॉन, ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर ले हीप्ड एंड हाफ होमर्ड आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। वो बोलता है कि मुझे ये फ्लावर क्या है चाहिए, बट ही वेल नो, उस पर उसे पता होता है कि पेरेंट्स तो रिफ्यूज़ कर देंगे, मुझे नहीं दिलाएंगे। सो वो आगे बढ़ जाता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग पॉल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून। फिर उसके बाद में बलून्स वाला आता है। अब बलून्स वाले देखिए मैं आपको इसमें हिंदी में आपको समझाता जाता हूँ। उसके बाद में बलून्स वाला आता है। बलून्स उसे देख के उसे बहुत इच्छा होती है कि मुझे बल, तो वो फिर अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे बलून्स चाहिए, मुझे बलून्स चाहिए। पर उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे फिर से रिफ्यूज़ कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट। उसके बाद में क्या होता है कि जो स्नेक है, आपने कभी देखा होगा कभी अगर आप मेले में पहले बहुत पहले मेले में क्या होता था कि स्नेक्स होते थे, उसमें जो बीन बजाते हैं वो बीन बजाकर और स्नेक को डांस करवाते हैं या बाहर निकालता है। ऐसे वो बीन बजाता है तो स्नेक बाहर आ जाता है, ऐसा लोग देखते हैं वहाँ पर, उसे पैसे दे देते हैं। तो वो देखने के लिए जो है वो फिर से जीत करने लगता है, उसके मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे वो देखना है। उसी तरह जैसे कि पहले हो रहा है उसे फिर से रिफ्यूज़ किया जाता है और वहाँ से वो बहुत ज़्यादा जिद करता है। फिर भी उसके पेरेंट्स उसे ना कर देते हैं, नहीं दिखाने देते हैं। लास्ट जो है आपका देयर वाज अ राउंड एंड फुल स्विंग मैन। उसके बाद में लास्ट जो होता है, देखिए सबसे पहले तो आया था आपका टॉय की दुकान, उसके बाद मतलब खिलौने की दुकान। फिर उसके बाद में वो गया था स्वीट्स की शॉप पर, फिर गया था फ्लावर, बलून और स्नेक, और लास्ट जो सिक्स्थ में है वो जाता है कहाँ पर, ये अपने झूलों पर, जहाँ पर झूला होता है फुल स्विंग जिसे कहते हैं, पूरा जो बड़ा झूला होता है जिसमें अपन बैठते हैं ना ऊपर नीचे जाते हैं वैसा। मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन क्राइड अवे इन रिंगलिंग मोशन एंड श्रिकल्ड एंड क्राइड विद डेजली लाफ्टर। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंसली एंड देन द मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड। वही वापस से फिर वो जिद करता है और जो फादर मदर है देयर वॉज नो रिप्लाई, फिर से उसे रिप्लाई नहीं करते हैं। ही टर्न टू लुक at his parents, they were not there ahead of him. He turned to look either his side and were not there. अब एक्चुअली में क्या होता है कि जो उसके बहुत ज़्यादा बच्चा एक्साइटेड हो जाता है झूले के कारण, तो झूले की तरफ जाने लग जाता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने के बाद में। तो वो जब वो बोलता है कि मुझे झूले में जाना है, झूले में जाना है, तो वो पीछे पलट के देखता है तो उसके मम्मी पापा तो वहाँ पर रहते ही नहीं है, वो घूम चुका होता है। फिर वो क्या होता है, ये अ फेल डीप क्राई, बहुत ज़्यादा रोने लगता है। विद इन द ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर स्टूड क्राइंग इन रियल फेयर मदर फादर। वो चिल्लाने लगता है, टीयर रोल डाउन विद, उसके आंखों में से आंसू आने लगते हैं। एंड फ्लश फेस ऑफ कॉन्फिडेंस विद फियर, बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, चिंता में होता है, इधर उधर भागने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, मम्मी पापा को चिल्लाने लगता है। फिर क्या होता है, हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेक ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉफ्ट एट लिटिल डिस्टेंस ऑफ द ग्रीन ग्रास। वो इधर उधर गिर जाता है, उसके कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा इधर उधर चिल्लाने लगता है। उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर देखिए उसे एक अंकल मिलते हैं, आप फोटो में देख रहे होंगे कि वो रोता हुआ बहुत ज़्यादा इधर उधर भागता है, तो उसे एक अंकल नोटिस करते हैं। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर, वो वहाँ पर दिखता है और उसे उठाते हैं और फिर उसे बोलता है देख, उसको पता चल जाता है, अंकल जो उसको मिलते हैं तो अंकल को पता चल जाता है कि बच्चा घूम चुका है और उससे पूछते हैं कि आपके मम्मी पापा कहाँ हैं,
आप कैसे घूम गए, पर वो नहीं बताता, रोते ही जाता है। तो फिर वो सोचते हैं कि हमें इसका माइंड डाइवर्ट करना होगा। फिर वो वापस उसी जगह ले जाते हैं, जैसे वो झूले पे था ना, तो पहले झूले पे ले जाते हैं। फिर उसके बाद में उसे स्नेक के पास लेके जाते हैं। देखिए लिखा है, द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड फ्लूट टू सुकोबला लिसन टू थ्रेड म्यूजिक चाइल्ड ही प्लीडेड। उसके बाद में बलून्स के पास में कलर्ड बलून, वो कहते हैं कि आपको बलून चाहिए क्या, और आपको मिठाई खानी है क्या, या आपको टॉयज़ चाहिए क्या। पर एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी जो बच्चा होता है वो बस रोने लगता है, और बस उसे यही बोलता है कि मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये जो स्टोरी है हमारी, देखिए लास्ट में लिखा है, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। लास्ट तक वो यही बोलता है और स्टोरी हमारी ख़त्म हो जाती है। तो स्टोरी का जो एंड है, हमें लग के वो मिला कि नहीं मिला पेरेंट्स से, वो एंड नहीं है। बस स्टोरी में हमें एक मैसेज मिलता है कि विदाउट पेरेंट्स चिल्ड्रन जो है, वो बच्चा है, बिना मम्मी पापा के खुश नहीं रह पाता, और उसे अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसे जितना भी कुछ चाहिए था उनके साथ में चाहिए था। अब वो नहीं है तो उसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप उसे, वो जो अंकल है वो आगे रह कर फोर्स करते, फिर भी उसे नहीं चाहिए होता। तो इस चैप्टर में हमें पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस पता चलती है। राइटर थे मुल्क आनंद। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।